Hello and welcome to the Ministry of Social Science. My name is Vivek Pandya and today we are going to continue with the second part of the first chapter on Class 10 Geography textbook, Contemporary India 2. The chapter's name was Resources and Development. And in the first video, we looked at the deeper meaning of resources. Anything which is available for our use is a resource for us, but it should be technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. Then we saw the interlinked relationship between the physical environment, technology, and institutions, and human beings play a vital role in this interdependent relationship. Then we classified the resources on the basis of origin, exhaustibility, and ownership. Today we are going to start from the classification of resources on their status of development. And this was your home assignment for the day for the first video. I hope you all would have completed it. So now let's begin. So, on the status of development, about this you have already read in the 8th standard that any resource which is being used by us currently, the resources whose quantity and quality is known as a developed resource. For example, we know how much coal we have in the mines. So in the soil bed, we know that we know the perfect quantity of coal, its quality, we know everything about coal, and we are using this for so many years now. So this is very well surveyed and everything is analyzed, and we know a lot of things about the coal. So this becomes a developed resource for us. And what is a potential resource? It is something which is a resource which can be found in a region, but it has not been utilized till now. Now, this does not have to do anything with the technological know-how or the economic feasibility. It is just not being utilized. For example, today we are using a lot of solar energy. But there was a time when solar energy was abundantly available and we were not using it. So it was looked upon as a potential source of energy. Like the wind farms are installed in the state of Rajasthan. Today they are installed. But 10 years before this, before the current time, it was not so in Rajasthan. So at that time it was a potential resource. So a potential resource is something whose quantity and quality we don't look into account. हम इसमें क्या देखते हैं कि ये एक ऐसा रिसोर्स है कि जो अभी यूज़ नहीं हो रहा, मिलता है कहीं पे लेकिन वो यूज़ नहीं होता, समथिंग विच इज़ नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड. एंड ये चीज़ें अंडर डेवलप्ड होती है. तो मैं से बोल सकता हूँ कि सोलर एनर्जी, फिर विंड एनर्जी, ये सब चीज़ें कभी यूज़ हो सकता है. सो दिस बिकम्स अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, अ डेवलप्ड सोर्स जिसको हम लोग अच्छे से अभी यूज़ कर रहे हैं. देन कम्स द स्टॉक रिसोर्स. अब ये ऐसी चीज़ है कि देर आर सो मेनी मटीरियल्स इन द एनवायरनमेंट जिसके अंदर ये पोटेंशियल होता है कि वो हमारा नीड्स को सर्व करे. फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन्स एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि भाई ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दे, कंबाइन करने से पानी बन जाएगा, फिर हम लोग पीते रहेंगे. बट द प्रॉब्लम इज़ वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजिकल नो हाउ फॉर दिस. जैसे हम लोग ने कृष्णा गोदावरी बेसिन के लिए देखा था कि वहाँ पे नेचुरल गैस अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास उसका टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं है. वी डिड नॉट हैव द टेक्नोलॉजिकल नो हाउ फॉर एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल गैस. देन आप लोगों को पता होगा कि फिजन रिएक्टर होता है. वन इज़ फ्यूजन रिएक्टर एंड द अदर इज़ अ फिजन रिएक्टर. तो इन द फिजन रिएक्टर the molecules are broken down into smaller numbers, and in fusion reactors 2 small elements they combine to form a huge to form another molecule. अब ये जो फ्यूजन रिएक्टर है, इट कैन प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी. हमारे सन में भी वही एनर्जी होते हैं, लेकिन वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजिकल नो हाउ टू टू कीप दिस रिएक्शन बैलेंस्ड. इसका चेन रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये बॉम्ब बन जाता है हमारे लिए. बट इफ़ वी आर एबल टू सस्टेन दिस चेन रिएक्शन, तो हमारा जितना भी एनर्जी का क्राइसिस है वो सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा. सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ स्टॉक रिसोर्स. ठीक है, स्टॉक रिसोर्स. देन देर इज अनदर पार्ट विच इज़ कॉल्ड द रिजर्व. अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वी हैव द टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, लेकिन अब लोग अभी इसको यूज़ कर नहीं रहे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
हमारे कंट्री में बहुत सारी जगहों पे स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस होता है. इमेजिन देर इज़ अ वॉर लाइक सिचुएशन एंड वी नीड फ्यूल टू पावर अवर टैंक्स एंड अवर ट्रक्स जो भी बॉर्डर पे है वो. ठीक है, तो इनके लिए हम लोग को वहाँ पे एक टैंक बनाना होगा जहाँ पे हम लोग को ऑयल स्टोर करके रखना होगा. दिस बिकम्स अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व कि अगर कभी क्राइसिस वाला सिचुएशन आया देन वी कैन यूज़ फ्रॉम दिस. ठीक है, तो हम लोग कभी फ्यूचर के लिए इसको जब सेव करके रखते दैट इज़ रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हमारे पास जितनी भी नदियाँ हैं द ऑल द रिवर्स दैट वी हैव, अब सब में से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है लेकिन सब पे तो डैम नहीं होता है ना. तो जिस पे डैम नहीं है इट इज़ अ रिजर्व्ड है. फ्यूचर में कभी अगर मन पड़ा या फिर अगर इफ देर इज़ अ नीड देन वी कैन कंस्ट्रक्ट अ डैम ऑन इट फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज़ नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. पोटेंशियल जिसका हम लोग उसको कभी यूज़ नहीं कर रहे अभी क्योंकि ये रिसोर्स अंडर डेवलप्ड है. टेक डेवलप्ड रिसोर्स जिसके बारे में सब कुछ पता है. स्टॉक रिजर्व वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजिकल नो हाउ. रिजर्व सब कुछ है लेकिन हम लोग ने फ्यूचर के लिए इसको सेव करके रखा है. सेव्ड फॉर द फ्यूचर, नो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड समथिंग द रिसोर्सेज विच आर अंडर डेवलप्ड. ट्राई टू रिमेंबर ईच ऑफ दीज विद एन एग्जाम्पल के साथ याद रखोगे तो ये याद रहेगा, वरना इट इज़ बाउंड टू गेट क्रिएट कन्फ्यूजन. देन द नेक्स्ट पार्ट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज का क्या है कि ये अवेलेबल है फ्री में नेचर में. सो इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. और ह्यूमन बींग्स तो वर्ल्ड का प्लेनेट का सबसे ग्रीडी एनिमल. सो इन लोग ने क्या किया, दे स्टार्टेड यूजिंग दीज रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली. वो लोग इसको जैसे उनका मन पड़े वैसे वो लोग यूज़ करना स्टार्ट करे थे. एंड द रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल. और हमारा क्वालिटी का लाइफ जो होता है द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट वी ऑल आर लिविंग वो सब इन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है. सो वॉट देर आर मेजर प्रॉब्लम्स दैट कैन बी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव और द ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज. जैसे द रिसोर्सेज जितने भी हैं अवेलेबल वो सारे डिप्लीट हो सकते हैं, जल्दी ख़त्म हो सकते हैं. डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स, फिर कोई बचेगा ही नहीं, नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा. देन देर इज़ अनदर प्रॉब्लम कि ये सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक पूरा चेंज कर देता है. इफ़ द रिसोर्सेज आर अक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी कोरोना वायरस के टाइम पे अगर वेंटिलेटर्स का अगर डेफिशिएंसी है एंड इफ देर इज़ वन कंट्री हु स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग the ventilators, or let's say one country which starts manufacturing the vaccine for coronavirus, और अगर वो सबको सप्लाई नहीं करेगा तो क्या होगा, अक्यूमुलेशन इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू. हैव्स एंड हैव नॉट्स क्रिएट हो जाएंगे सोसाइटी में, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है. एंड इसकी वजह से सोसाइटी में रिच एंड पुअर का जो गैप जो होता है वो बढ़ते जाता है. दिस अगेन क्रिएट्स अ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. फिर एक जो प्रॉब्लम जो हम लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं दैट इज़ द इकोलॉजिकल क्राइसिस. द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का डिप्लीशन, द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, द लैंड डिग्रेडेशन. यू ऑल हैव रेड अबाउट ऑल दीज इश्यूज इन द अर्लियर स्टैंडर्ड्स. तो ये जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ जो हम लोग करते हैं रिसोर्सेज का, अगर आप उसको स्टॉप नहीं करोगे, रिसोर्सेज को अगर ढंग से यूज़ नहीं करोगे, जुडिशियस मैनर में अगर यूज़ नहीं करोगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो वी हैव टू मेक श्योर कि ऑल दीज थिंग्स डू नॉट हैपन. हम लोग को रिसोर्स को इस तरह से डेवलप करना है एट डिप्लीशन ना हो, रिसोर्सेज आर लेफ्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, हैव्स एंड हैव नॉट्स ना क्रिएट हो, और कोई इकोलॉजिकल क्राइसिस क्रिएट नहीं होना चाहिए. एंड फॉर दिस व्हाट इज़ द एसेंशियल थिंग विच वी ऑल नीड टू डू इज रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स को प्लान इस तरह से करना है, उसका यूज़ इस तरह से प्लान करना है कि ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग उसमें से सॉल्व कर सकें. एंड लाइफ में the first time they talked about such problems in the Club of Rome. The Club of Rome at the international level advocated resource conservation for the first time in a systematic way in the year 1968. Then in 1974 हमारे गांधी जी से इंस्पायर होके किसी ने एक बुक लिखी थी which was known as small is beautiful was the name of the book, and it was written by Schumacher in 1974. Now this was again a contribution towards resource conservation.
फिर एक सबसे बड़ा जो जो ब्रेक थ्रू जिसने किया था, दैट वाज बाय द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट इन 1987. Now this commission introduced the concept of sustainable development. We all know about the sustainable development, right? We all have to use the resources in such a manner that the resources, हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी बंद नहीं होंगे और रिसोर्सेज बचेंगे फॉर द फ्यूचर जनरेशन. तो हम लोग को एक बैलेंस क्रिएट करना है. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, डेवलपमेंट तो करना ही है, बट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट. एंड द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. फ्यूचर जनरेशन के जो नीड्स है उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. तो इसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट करने की बात करें. रिसोर्स का यूज़ करो, डेवलपमेंट इज़ योर गोल, यू कैन डेवलप, लेकिन उससे एनवायरमेंटल डैमेज नहीं होना चाहिए इज़ वन कंडीशन. एंड द सेकेंड कंडीशन इज देयर शुड नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच वॉज फर्स्ट टाइम मैंशनड इन द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट. फिर इससे आगे एक लेवल हम लोग गए. आज तो हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, बट द फर्स्ट टाइम एट द वर्ल्ड लेवल आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे ऑल केम टुगेदर और उन लोग ने मिलके डिसाइड किया कि दे ऑल मेट एट रियो डे जेनेरियो इन ब्राज़ील. मोर देन 100 हेड्स ऑफ द कंट्रीज दे ऑल मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये फर्स्ट अर्थ समिट था. एंड दिस समिट कन्वीन्ड एन एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल. पहली बार इस समिट के अंदर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हुई. And the leaders who were assembled, they signed the Declaration of Global Climatic Change and Biological Diversity. They all signed a declaration on this कि climate change is a reality, biological diversity को protect करना है. इन सब के बारे में पहली बार इन लोग को ये सब चीज़ें रियलाइज़ हुई. और ये जो रियो कन्वेंशन जो था, इट लेड डाउन प्रिंसिपल्स, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, और इसने एक कुछ अडॉप्ट किया. And that was known as the Agenda 21. Now, these were the Sustainable Development Goals which were to be achieved by the year 2021. एक साल के बाद it should have been achieved. और ये Millennium Development Goals थे. 2021 तक कुछ करना है, फिर उससे आगे वो लोग प्लान करेंगे, फिर उससे आगे प्लान करेंगे. तो up till the 2100 हम लोग जब पहुँचेंगे, 2100 के ईयर में जब पहुँचेंगे, तो उस टाइम पे भी रिसोर्सेज बचेंगे फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. तो ये सोच के साथ Agenda 21 was established. Agenda 21, it is a declaration signed by the world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development. It is known as UNCED, UNCED, United Nations Conference on Environment and Development. और इसके अंदर इन लोग ने ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात किया. सभी कंट्रीज़ का कोऑपरेशन, कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स, और सब ने बोला कि यहाँ पे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए. Everyone has to come together. और फिर इसके बारे में they should allow these goals to be move forward. ठीक है. फिर 2015 के अंदर ये जो गोल्स जो थे, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको हम लोग ने थोड़ा सा अपडेट किया. इसको हम लोग ने ये टुडे these are the sustainable development goals. These 17 are the sustainable development goals. You can pause the video here and take a look at it. आप इसके बारे में ऑनलाइन पढ़ भी सकते हो. मैंने नीचे लिंक शेयर किया है. And this is what the entire world is trying to establish right now. No poverty, zero hunger. All these are the sustainable development goals which are to be achieved by the year 2030. और इसके लिए बेसिक चीज़ होता है, you need to plan the use of resource. तो हम लोग जो कब से प्लान बोले, तो what do you mean by resource planning? रिसोर्स प्लानिंग को समझने के लिए इतना ही याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अप्लाई करेंगे. व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इट्स जस्ट अ प्रिंसिपल कि रिसोर्सेज को जुडिशियस वे में यूज़ करना है, कि डेवलपमेंट भी हो, फ्यूचर जनरेशन का नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. बट इसको अप्लाई करने के लिए वी नीड अ मैथडोलॉजी, और ये जो मेथड होता है दैट इज़ नोन एज रिसोर्स प्लानिंग. तो रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर द जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. और हमारे इंडिया जैसे कंट्री के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज इंडिया इज़ गिफ्टेड विथ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे कंट्री के, अलग अलग रीजन्स के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज है. कोई रीजन्स होंगे विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज, देन द सेम रीजन कुड बी डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल आप राजस्थान में देखो,
राजस्थान में सनलाइट और विंड पावर बहुत ज़्यादा मिलता है उनको, बट दे हैव अ डेफिशिएंसी, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर कहीं पे पानी ज़्यादा है तो मे बी वहाँ पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। देर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। सो और उसके सामने कुछ और रीजन्स होंगे विच विल हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। तो समझ रहे हो, कोई रीजन में अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है तो वहाँ पे पानी अवेलेबल या कुछ और प्रॉब्लम्स है। अगर कोई जगह पे रिसोर्सेज अवेलेबल है तो मे बी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसे मिक्स्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। देन देर इज अ रीजन लाइक लद्दाख। लद्दाख इज़ कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और लद्दाख का अच्छा चीज़ ये है कि इट हैज़ अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। और ये जगह, दिस प्लेस इज़ ऑल्सो डेफिशिएंट इन वाटर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे बहुत कम है, वहाँ पे मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इससे हमको समझ में क्या आता है कि देर आर अनसर्टेनिटीज़ इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन अ कंट्री लाइक इन एनी कंट्री। आप इंडिया की नहीं, आप किसी भी कंट्री की बात करो, रिसोर्स प्लानिंग की बात कर रहे हो तो वो तो जस्ट एक एग्जाम्पल था कि इंडिया में अलग अलग प्लेसेस पे अलग है। रिसोर्स प्लानिंग के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेटेजी, लेज डाउन द स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। वाई? बिकॉज देर आर अनसर्टेनिटीज़ इन द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ अ रीजन। हर कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, तो हमको करना क्या है, वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दीज अनसर्टेनिटीज़। हमको एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए एट द नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल, लोकल लेवल। हर जगह पे हम लोग को रिसोर्स को इस तरह से प्लान करना है कि हमारा कंट्री का गोल अचीव होना चाहिए। ओके तो इसके लिए इंडिया हैज ऑल्सो लेड डाउन अ स्ट्रेटेजी, द रिसोर्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया। तो हम कैसे प्लान करते हैं? नाउ इंडिया को भूल जाओ, जस्ट कंसिडर योर सेल्फ, यू ऑल आर इन 10th स्टैंडर्ड। तो 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपका गोल क्या है? दैट यू वांट टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। ठीक है, अब बेस्ट रिजल्ट आपको चाहिए, उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगा। एंड व्हाट वुड बी दैट स्ट्रेटेजी? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। विच सब्जेक्ट इज योर स्ट्रेंथ, विच सब्जेक्ट इज योर वीकनेस। अब जो वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करोगे? यू विल इवॉल्व एंड एक प्लानिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे। प्लानिंग स्ट्रक्चर ऐसा कि जिसके अंदर आपका वो जो अंडर डेवलप सब्जेक्ट जो है, आपको वो चीज़ जो नहीं आती है वो चीज़ में डेवलपमेंट हो, उस सब्जेक्ट को आप इवॉल्व करोगे। ठीक है, यू ऑल हैव दिस पोटेंशियल कि आप एक्सेल कर सकते हो पढ़ाई में, लेकिन आपको ये प्लानिंग करके स्ट्रेटेजाइज करके जाना पड़ेगा। यू नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट डू यू नो एंड व्हाट डू यू नॉट नो। फिर जो चीज़ नहीं पता है उसको कैसे अच्छा करोगे, और जो चीज़ अच्छे से आता है उसमें भी आप एक्सेल कैसे करोगे, उसमें भी बेस्ट आउटपुट कैसे लेके आओगे। ये दोनों अगर आपने मैनेज कर लिया, ये दोनों अगर आपने बैलेंस कर लिया, उसके बाद आपका ये जो जो इवॉल्व किया हुआ जो प्लान जो है उसको आपका जो जो मेन जो गोल है टू अचीव मैक्सिमम मार्क्स, उसके साथ मर्ज कर दो और आपका ये रिसोर्स प्लानिंग हो गया। कंट्री के लिए भी सेम चीज़ है। कंट्री क्या करेगा? पहले अपने कंट्री में सर्वेइंग करेगा, मैपिंग करके द कंट्री विल आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज अवेलेबल। फिर कंट्री क्या करेगा? जो चीज़ में डेफिशिएंसी है या जो चीज़ के अंदर कमी है, उन सब चीज़ों के लिए एक प्लानिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा विथ सम अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स, और फिर इंस्टीट्यूशनल सेटअप करके उस रिसोर्स को डेवलप करने का ट्राई करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट इज आइडेंटिफिकेशन, देन द नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ दोज रिसोर्सेज। फिर थर्ड पार्ट आता है आपका रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान शुड मीट विद द डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ द नेशन। एक नेशनल डेवलपमेंट प्लान होता है कि कंट्री को किस डायरेक्शन में आगे जाना होता है, उसके साथ वो मैच होना चाहिए। सो फॉर दिस इंडिया ने पहले सून आफ्टर इंडिपेंडेंस वी क्रिएटेड दी प्लानिंग कमीशन। अभी हम लोग ने उसको चेंज करके नीति आयोग बना दिया है। सो नीति आयोग डज द सेम टास्क। आज भी हम लोग यही चीज़ करते हैं, ग्राउंड लेवल से हम लोग इसको स्टडी करने का ट्राई करते हैं, हम लोग को यही अचीव करना है। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? जस्ट इमेजिन, ये चीज़ समझो आप कि हमारे कंट्री में ये सारे के सारे रिसोर्सेज पहले से अवेलेबल थे। ऑल दीज रिसोर्सेज दैट वी आर सीइंग, दैट वी आर विटनेसिंग टुडे, वो सब कुछ अवेलेबल था। बट क्या इंडिया उस टाइम पे इतना इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहा था? नहीं कर रहा था। ये सब आइडेंटिफाई किसने किया? द कोलोनाइजर्स। दे केम एंड दे आइडेंटिफाइड ऑल दीज थिंग्स, एंड फिर वो लोग ने हमारे कंट्री में से वही रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके अपने कंट्री के डेवलपमेंट को किया। क्योंकि उनका क्या था, उनका टास्क क्या था? दे वांटेड टू अलाइन द रिसोर्सेज विद देयर नेशनल डेवलपमेंट। तो उन्होंने अपने कंट्री को डेवलप किया यूजिंग आवर रिसोर्सेज।
तो कोलोनाइजेशन की जो हिस्ट्री है, इट रिवील्स दैट रिच रिसोर्स इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शंस फॉर फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है, वो लोग हमारे रिसोर्सेज को देख के आ रहे थे और फिर उन्होंने क्या किया, इसको एक्सप्लॉइट करके अपने कंट्री का डेवलपमेंट किया। आज हमको यही चीज़ करनी है, हमको हमारे कंट्री के रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना है, उसको डेवलप करना है और हमारे कंट्री को नेशनल डेवलपमेंट पे लेके जाना है, उसको हम लोग को आगे आगे बढ़ाना है। सो दिस इज द थियोरी पार्ट ऑफ दिस। देन द लास्ट पार्ट of today's video is the conservation of resource. Now, for the conservation, again, we all have read about this for so many years. Resources हमारे कंट्री के लिए वाइटल होते हैं, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और हर तरीके से हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल के लिए ये वाइटल चीज़ होता है। सो अगर हम लोग इसका इररेशनल कंजम्पशन करेंगे, ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे, तो इट कैन क्रिएट सोशियो इकोनॉमिक एंड द डेवलपमेंटल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जैसा हम लोग ने यहाँ पे देखा था। ऑल दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी क्रिएटेड अगर हम लोग कंजर्व नहीं करेंगे तो। एंड टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स हम लोग को क्या करना होगा, रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स। और दिस हैज़ बीन अ कंसर्न ऑफ फॉर many लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। जैसे गांधी जी वॉज वेरी एप्ट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, देर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ठीक है, हमारे कंट्री पूरे दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है फॉर एवरीबडीज नीड। एक स्टोरी था, हम लोग बचपन में ऐसा पढ़ते थे कि गांधी जी यूज टू यूज़ ओनली 1 बकेट ऑफ वाटर फॉर हिज एंटायर डेज एक्टिविटी। अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए, ब्रश करने के लिए, फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ वो एक बकेट पानी यूज़ करते थे। और हम कितना पानी यूज़ करते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रीडी एंड द सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड द एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी विच इज़ द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन एट ग्लोबल लेवल। अगर कोई कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, कोई कंट्री कम डेवलप्ड है, उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है? कि कोई लोग होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी वो लोग हो जाते हैं, दे आर वेरी सेल्फिश, सो दे यूज़ द वाटर, जितनी भी चीज़ें उनको फ्री में अवेलेबल होती है उसको वो लोग ओवर यूज़ करते हैं। सो दिस शुड नॉट बी डन। ये जो मास प्रोडक्शन का जो कंसेप्ट होता है ना, गांधी जी वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। ही वॉन्टेड प्रोडक्शन बाय मासेस। मास के लिए प्रोडक्शन मत करो, मास को इकट्ठा करके प्रोडक्शन करो। तो वो गांधी जी की फिलोसॉफी थी फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट? whenever you are asked a question about conservation of resources, you need to use this sentence. इसको कोट करो, इसको कोट करके इस सेंटेंस को स्टार्ट करो। एनीवेयर, दिस सेंटेंस कैन बी यूज्ड एनीवेयर, नॉट जस्ट इन जियोग्राफी, पर आप इसको इकोनॉमिक्स में, इवन इन फॉर साइंस सब्जेक्ट्स आप इसको यूज़ कर सकते हो। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।